براہ راست آپ کو لے چلیں گے اس وقت مظفرآباد۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں کی کانفرنس اس وقت جاری ہے۔ اس کاز کے لیے حریت کانفرنس وجود میں آئی ہے، اس کاز کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم بھرپور جد و جہد کریں اور ہر محاذ پہ جد و جہد کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جموں و کشمیر اقوام متحدہ کے نزدیک، عالمی برادری کے نزدیک، پاکستان کے نزدیک اور خود ہندوستان بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتا رہا ہے کہ جموں و کشمیر ایک متنازع خطہ ہے۔ یہ ابھی کسی ملک کا حصہ نہیں ہے۔ یہ کسی ملک کا حصہ صرف اس وقت بن سکتا ہے جب اس خطے کے لوگ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ اپنا مستقبل کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہندوستان کا یہ دعویٰ کہ جموں و کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے، ایک غلط دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اقوام عالم کے نزدیک بھی یہ ایک بھونڈا دعویٰ ہے۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 5 اگست کے بعد 2019 میں ہندوستان نے ایک یک طرفہ کارروائی کر کے جموں و کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے اس وقت بھی پاکستان کی حکومت کے سامنے حریت کانفرنس نے کچھ تجاویز رکھی تھیں، جس میں پہلی بات یہ تھی کہ پاکستان کو یہ مسئلہ اور ہندوستان کا یہ یک طرفہ طرز عمل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اٹھانا چاہیے ایز اے ممبر اسٹیٹ آف یونائٹڈ نیشنز۔ دوسرا یہ کہ ایک وفد تشکیل دیا جائے جو دنیا کی امپورٹنٹ کیپٹلز میں جائے اور وہاں پہ ان ممالک کے ذمہ داران کو اس حقیقت سے آگاہ کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہیں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، ان کو ختم کیا جائے اس وقت تک جب تک ہندوستان یہ اقدام واپس نہیں لیتا اور جب تک ہندوستان رائے شماری اور فوجی انخلا پر آمادہ نہیں ہو جاتا۔ کچھ کاموں پہ واقعی عمل ہوا، لیکن بڑے پیمانے پہ ہندوستان نے بھی لابینگ کی اور اپنے غلط کو دنیا کے سامنے صحیح ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ 5 اگست سے پہلے بھی ہندوستان نے جموں و کشمیر کی قیادت کو گرفتار کر کے پس دیوار زنداں پھینک دیا، مقید کر دیا، قید کر دیا، جیلوں میں بھر دیا، اور 5 اگست کے بعد تو بالکل جو آواز بھی بلند ہوتی رہی مقبوضہ کشمیر کے گلی میں، کوچوں میں، بازاروں میں، کہیں سے بھی ان آوازوں کو دبا دیا گیا اور جیلوں کے دروازے کھول دیے گئے، اور اس وقت ہزاروں کی تعداد میں حریت قائدین، حریت کارکنان، خواتین، حتیٰ کہ بچے بھی، بوڑھے بھی گرفتار ہیں، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ جموں و کشمیر کو ہندوستان کا حصہ نہیں سمجھتے بلکہ ایک متنازع خطہ سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو وہ وعدے پورے کرنے چاہیے جو اس نے کشمیریوں کے ساتھ اور اقوام عالم کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے کیے ہیں۔ آج ہم جو یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں،
हकीकत ये है कि कल 26 जून को अक़वाम मुत्तहिदा का तस्लीम शुदा एक आलमी दिन, जो अफराद टॉर्चर के मुतासिरीन हैं उनके साथ हिमायत का दिन कल 26 जून है। और 26 जून को हम इसी मुनासबत से, इसी आलमी दिन की मुनासबत से उस टॉर्चर का पर्दा चाक करना चाहते हैं जिसके नतीजे में कश्मीरी कायदीन कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, जिसके नतीजे में कस्टोडियल किलिंग्स हो गई, लोगों को जेलों में मारा गया, शहीद कर दिया गया। सईद अली गीलानी, अशरफ सहराई, फिरदौस अहमद, अल्ताफ अहमद शाह, बेशुमार अफराद, और ये लोग और दूसरे हमारे कायदीन, खवातीन, आसिया इंद्राबी, नाहिदा नसरीन, फाहमीदा सूफी, बच्चे, बूढ़े कैदोबंद की सऊबतें खुद बर्दाश्त कर रहे हैं और उनके अहले खाना ज़हनी कोफ्त का शिकार हैं, ज़हनी अज़ियत उनको दी जा रही है। सख्त तरीन गर्मी में किसी फैसिलिटी के बगैर कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं हमारे कायदीन को, जिनमें से कुछ ऐसे भी हैं, मसलन मोहम्मद कासिम फक्तू साहब, वो एक महमूद साहब, शफी शरीयती साहब, इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मोहम्मद यासीन मलिक, उसको झूठे इल्जाम में इसी तिहाड़ जेल में मुक़य्यद कर दिया गया है, शायद ये सोचकर कि मकबूल भट्ट और अफजल गुरु और दीगर कायदीन कश्मीर जो हैं उन्हीं का जैसा अंजाम इसका भी कर दिया जाए। लेकिन कल जो प्रोग्राम हम आज़ाद जम्मू व कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में 9:30 बजे मुनाकिद कर रहे हैं और जिसके दौरान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आज़ाद कश्मीर की मजहबी, सियासी, नौजवान क़यादत, वकला क़यादत, ताजिर बरादरी और दीगर तमाम शोबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इजहार करेंगे यकजहती का इन कायदीन के साथ, इन असीरान के साथ, जिनके बारे में हिंदुस्तान ये समझता है कि इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कल के इस प्रोग्राम के ज़रिए हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहेंगे कि हमारे कायदीन, उनके साथ पूरी कौम वाबस्ता है। आज़ाद खित्ता उनके साथ यकजहती का इजहार कर रहा है। हम OIC को, हम यूनाइटेड नेशंस को, हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल को और दीगर तमाम इंसानी हकूक़ के इदारों को इस जानिब मुतवज्जह करेंगे कि जम्मू व कश्मीर में एक सानिहा है जो रोनुमा हो चुका है। वहाँ पे घर जलाए जा रहे हैं, लोगों की जायदादें जब्त हो रही हैं, वहाँ की ज़मीन हिंदुस्तानी लालों को बेची जा रही है और वहाँ जुल्म व ज़्यादती का एक निज़ाम है जो राइज है और उसके ख़िलाफ़
हम कल 26 जून को एक एहतजाज कर रहे हैं अवामी सतह पे, ताकि अपने इन असीरान की, अपने इन कायदीन की इस सूरत हाल से हम दुनिया को आगाह कर सकें। और हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक जो ये पैगाम पहुंचेगा, मेरा ख्याल ये है कि कल के प्रोग्राम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारे मीडिया का रोल बहुत ही अहमियत इख्तियार कर चुका है। और ये आप हजरात की ज़िम्मेदारी है कि आप दुनिया तक हमारा ये दुखड़ा पहुंचा दें, हमारी ये बातें पहुंचा दें। हम तन्हा पूरी दुनिया तक ये बात पहुंचाने की पोजीशन में नहीं हैं, लेकिन आपके मीडिया में ये क़ुव्वत है कि आप पूरी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ सकेंगे कि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में किस तरह एक जेनोसाइड कर रहा है, किस तरह वहाँ पे कत्लेआम किया जा रहा है। फ़लस्तीन और गज़ा का कत्लेआम दुनिया देख रही है, लेकिन बहुत कम लोगों को इल्म है कि इसराइल और हिंदुस्तान का बाहम दिगर क्या ताल्लुक़ है। उस ताल्लुक़ को भी कल के उस प्रोग्राम में हम एक्सपोज़ करना चाहेंगे, ताकि दुनिया को मालूम हो सके कि हिंदुस्तान वही पॉलिसीज़ अपना रहा है और आगे बढ़ा रहा है जो इसराइल ने गज़ा में और फ़लस्तीन में इख्तियार की हैं। तो इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ, अगरचे आज का हमारा मौजू जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर और हिंदुस्तान में जितने भी हमारे कायदीन हैं उनकी ज़बूहाली पर, उनकी गिरती हुई सेहत पर हम बात करें और इसी पर फोकस्ड रहें। मुज़फ़्फ़राबाद आपको बताएं कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है और कहा जा रहा है उनकी जानिब से कि जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ ख़ित्ता है। हिंदुस्तान के इस दावे को मुस्तरद करते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। जम्मू कश्मीर की हैसियत को तब्दील करने की कोशिश की गई। इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाना चाहिए। जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान उसे ख़त्म किया जाए। साथ ही आपको ये बताएँ कि कल हुर्रियत रहनुमाओं से यकजहती के लिए एहतजाज का ऐलान भी किया गया है। ये भी कहा गया कि बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान ने लॉबिंग की और अपना गलत भी सही दिखाने की कोशिश की गई। 5 अगस्त के बाद मकबूजा कश्मीर में बुलंद होने वाली आवाज़ों को दबाया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।